Hello everyone. In this our ICT journey, we learned a lot of things, right? Not the lot of, but we learned few things which we can use to create some meaningful content. Like we can create one resume, not the appropriate resume, but we at least try to create one kind of resume, right? जो अब तक हम लोग ने options सीखे हैं like home, then page layout, then insert. So using that applications in Microsoft Word, we can create one particular document, one particular meaningful document like resume. Okay, we can create anything. I am giving resume as an example. आपण काहीही create करू शकतो. So now we further move to the next options in this our Microsoft Word journey. Okay, so chapter 2 is totally based on this Microsoft Word. तो जितने भी options है we can see one by one. मतलब एक particular tab options मतलब एक particular tab. In that tab there are a lot of options, like see here in the home tab. Here is a paste, copy, then format painter, then layout, lot of options. Similarly in the insert tag there are a lot of options. Okay, so we see not in the deeply, और वो इतना deep जाने की जरूरत भी नहीं है. और डीप में आप लोग जा सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने आपको होमवर्क टास्क मैंने दिया भी है. सो वो आप कर सकते हो, बट वी आर नॉट प्रोफेशनल, राइट? वी आर बिगिनर. सो एट द बिगिनर लेवल पे हम लोग को जितनी चीजें मालूम होनी चाहिए, एटलीस्ट उतनी चीजें तो हम लोग को मालूम होनी ही चाहिए. एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, वी आर ट्राइंग टू गेन दोज पर्टिकुलर थिंग्स टू achieve not the high level, not the appropriate level, but at least beginner level. Okay, at least intermediate level. So ठीक आहे, बघूया आपण पुढचे ऑप्शन्स कोणकोणते. Okay, see here, see the mouse arrow. Okay, so we are done with the changing layout of document right now. Okay, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में changing the layout of डॉक्यूमेंट देखा था, उसमें हम लोग ने एडजस्ट पेज मार्जिन्स एंड चेंज पेज ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें देख ली थी. एंड दिस इज योर सिलेबस कॉपी, राइट? ये हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में दिखाया था, व्हाट इज दिस सिलेबस कॉपी एंड ऑल. ओके, सो बैक टू पॉइंट. The next option is 2.4, inserting elements to a Word document. Means how we can insert, means we had seen this topic already, but yes, as per the appropriate way, as per the syllabus way, the fourth sub elements, or the fourth topic is inserting elements to a Word document. So in this lecture we are going to see insert and delete a page break, how we can break the page. I think we see already that this point, the page break and kind of thing. But yes, page break, then page numbers, how we can add page numbers, then insert the date and time. Okay, then insert special characters or symbols. Okay, insert picture from a file, वो भी हम लोग ने देख लिया था. We add one गणेशा पिक्चर, वन गणपति बप्पा पिक्चर टू अवर वर्ड फाइल. आई गेस वो यही लेक्चर की सीरीज में रहेगा, चैप्टर 2 की लेक्चर की सीरीज में रहेगा वो लास्ट, या फिर उसके पहले वाला लेक्चर. वहां पे हम लोग ने एक पिक्चर भी ऐड किया था. देन रिसाइज एंड रिपोजिशन अ पिक्चर. आई गेस वी आर डन विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो ठीक है. उसके बाद है वर्किंग विद टेबल्स. तो टेबल्स भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है. फिर भी हम लोग एक बार ये इसमें जितने भी कोई कुछ एडिशनल ऑप्शंस है वो एक बार देख लेते हैं, या फिर कुछ नया है तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द insert element in Microsoft Word. Okay, so before starting the actual point, I mention here one important note as wait, माझा पीसी हँग झाला बहुतेक. ठीक आहे, ठीक आहे. Okay, 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 okay. So the bottom line is uh, we need one paragraph, right, to manipulate the text, to add some alignment, to put the extra color, to border them, to bold the text, to italic the text, to underline them. Okay, to basically to do a lot of stuff, to do a lot of task in one particular paragraph. So basically we need one paragraph. Okay, so we can I in the previous lecture I told you that to do this we can copy one particular paragraph in from the internet, या फिर हम लोग खुद से भी टाइप कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज वन मोर वे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओनली. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओनली. ओके, ध्यान से सुनो, आई सेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओनली. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर में हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं.
बट आई डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके पास, मतलब मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही कर रहे हो। दिस सॉफ्टवेयर इज WPS ऑफिस, जो मोबाइल में भी है। ओके, आई डोंट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सो आई यूज दिस सॉफ्टवेयर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग एक शॉर्टकट की यूज करके पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वाज दैट शॉर्टकट की? So here I am writing that shortcut key as shortcut key. Okay, गाइस थोड़ा पीसी लैपटॉप स्लो है मेरा, ठीक है। तो शॉर्टकट की वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करोगे। ओके, वी गो, we click on the Microsoft, या फिर we start the computer or laptop. Okay, then we right click on the desktop, then select new tab in the right click option, and then in the new tab we select one word file। ऐसे हम लोग word file create करते हैं। ओके, हम लोग ने word file create की। now there is a total blank document in front of my eyes। ओके, या फिर स्क्रीन पे मेरे blank document है। so in that blank document you write equal to then rand then function, या फिर open bracket and close bracket। okay, so equal to rand and function and then press enter and see the magic। okay, यहाँ पे मॅजिक हम लोग को दिखाई नाही दे रहा है, कारण की मी जोकर नाही आहे तुम्हाला मॅजिक दाखवायला, आणि इकडे मॅजिक दिसणार नाही का? कारण की why why wouldn't you see the magic? Because this software is WPS office। okay, so this magic, this shortcut key is only available for Microsoft Word। clear with this? okay, तो Microsoft Word में आप लोग को अगर कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ चाहिए, सो यू कैन यूज इक्वल टू रैंड एंड दिस। ओके, सो स्क्रीनशॉट दिस, या फिर यहाँ पे लिख लो, या आप यूज करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपके कंप्यूटर पे डायरेक्टली रैंडम कुछ तो आ गया है। मैं उतना लकी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने एक पैराग्राफ उठाया है नेट पे से। ठीक है, बिकॉज वी नीड पैराग्राफ टू डू दिस, टू डू द टास्क ऑफ दिस, यूजिंग दिस ऑपरेशन, यूजिंग दिस टैब्स। ओके, सो उसके बाद वाला टॉपिक था पेज ब्रेक। ओके, तो पेज ब्रेक देखते हैं। थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। ओके, पेज ब्रेक कुठे गेला? ओके, हियर इज पेज ब्रेक। इंसर्ट में देखो पेज ब्रेक। ओके, सो आई गेस वी ऑलरेडी डन विद द पेज ब्रेक थिंग, बट ओके, देखते हैं फिर भी। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड वी क्लिक ऑन द पेज ब्रेक। हाँ, तो वो डायरेक्टली उसके बाद वाला, हाँ, आफ्टर द मैंने जहाँ पे क्लिक किया है, हाँ, तो उसके बाद वाला जितना भी पार्ट है गोज टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, और ऑलरेडी तीसरा पैराग्राफ मेरे पास था। ठीक है, तो पेज ब्रेक क्या करेगा, वो पॉइंट से मेरा पेज ब्रेक करने वाला है। अभी उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशंस है, मुझे कैसे कैसे पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, ये सब ऑप्शन है। आई गेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस, MS वर्ड में कुछ अलग ऑप्शंस रहेंगे, लाइक सिमिलर है, सेम ही है, सिर्फ ये WPS ऑफिस है। मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। सो आप देखो कि ब्रेक में कैसे कैसे पेज को ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था उसके बाद? इंसर्ट अ पेज नंबर। ओके, इंसर्ट अ पेज नंबर, सो वी कैन यूज। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास अभी आई गेस 3 पेजेस है, टोटल 3 पेजेस है। वेट अ मिनट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, और लेफ्ट लेफ्ट साइड के बॉटम में देखो 1/3। ओके, सो मेरे पास 3 पेजेस, मतलब ये 3 पेज का कंटेंट है। एंड आई वांट टू, मीन्स अभी ये तो सिर्फ मेरे पास 3 पेज का कंटेंट है। इफ सपोज द PDF फाइल कंटेंट्स, या फिर वर्ड फाइल कंटेंट्स थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, हाँ, या फिर 862 पेजेस। ओके, सो आई हैव टू फिगर दिस आउट कि how many pages my document content, one document content। okay, so for to do that we add one, we add here page number। okay, so there are lot of डिजाइनेशन कि कहाँ पे मुझे चाहिए, हेडर के लेफ्ट में चाहिए, हेडर के मिडल में चाहिए, बहुत सारे ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि ये टॅब्स में जो ऑप्शन है उसमें भी बहुत सारे सब मॉड्यूल्स आहे, तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जे आवडेल तिकडे तुम्ही ते सेट करू शकता। ओके,
सो मैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वही लेने वाला हूँ। ठीक है, आ गया पेज नंबर 1, सी पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ओके, ओके क्लियर। अभी देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है हेडर और यहाँ पे कुछ आ रहा है फुटर। ओके, नाउ व्हाट इज हेडर एंड फुटर? हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है? हेडर मत मीन्स, हेड मीन्स क्या? हेड मीन्स द पार्ट ऑफ बॉडी विच बिलोंग्स टू द टॉप ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो टॉप में जो हमारा पार्ट है बॉडी का, जो हेड है। हेड बॉटम में रहता है क्या? कोई है क्या अपने आईसीटी के क्लास में जा जिसका सर नीचे है? कोई है ऐसा उल्टे दिमाग वाला? ठीक है, तो सबका आई गेस सब लोग ने चेक किया होगा, तो सबका जो हेड है वो ऊपर ही है। ओके, तो जो हेडर मतलब क्या, कि जो ऊपर वाला कंटेंट है या फिर ऊपर कुछ हेडिंग देना है मुझे या फिर ऊपर कुछ टैगलाइन लिखनी है मुझे, देन इट मस्ट बी हेडर। और यहाँ पे जो मैं नीचे लिखने वाला हूँ वो फुट। फुट कहाँ पे रहता है? ऑब्वियसली एट द बॉटम ऑफ द पेज। और वो फुट पाव जमीन पे रहनी चाहिए, ठीक है भाई? ठीक है ना? नहीं तो फिर पाव आसमान में गए तो फिर क्या बोलेंगे? ओके, यू नो दैट वेरी वेल। तो ऑब्वियसली जो फुट वाला पार्ट है वो नीचे रहता है, तो जो पेज के सब ग्राउंड में है, जो बॉटम में है, उसे हम लोग फुटर बोलने वाले। ठीक है, देखो यहाँ पे है हेडर एंड फुटर। ओके, सो मुझे कुछ हेडर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से हेडर ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे वेलकम टू आईसीटी वर्ल्ड। ओके, तो मैंने पेज नंबर और वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, वी कैन फिक्स दैट। ओके, ये मैंने सेंटर में ले लिया। और देखो ये अभी क्या हो गया मेरा, ये हेडर है। जैसे कि बहुत सारे बुक्स पे रहता है, बहुत सारे पेजेस पे वेबसाइट पे रहता है कि वो हेडिंग है, और अगर मुझे ऐड करना है फुटर, मुझे फुटर ऐड करना है, सो वी कैन राइट आई राइट फुटर एज डोंट फ्लाई or else I will cut your what? I will cut your what? I will cut your wings. ओके, सो ऐसा मेरा टैगलाइन है जो मैंने फुटर को दिया। आप कुछ भी रख सकते हो, आप मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बताना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे सारी टैगलाइंस यूज कर रहा हूँ। बट यू नीड टू राइट वन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू create one meaningful document. Okay, okay, then the next option is date and time. Okay, how we can add one date and time to our content. Okay, जो अभी मुझे सपोज यहाँ पे डेट ऐड करनी है। okay, so click here date and time। सारे ऑप्शंस यहाँ पे ही है, इतना मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आई गेस बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया भी होगा, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होगा, बट ओके। सो डेट एंड टाइम पे यहाँ पे क्लिक करो and see here there are lot of different types। okay, so choose whichever type you want to print to create। okay, so suppose मुझे ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है कि February 5 और उसके बाद मीन्स मंथ, then month in text format, then date in number format, comma, then year in number format। ये फॉर्मेट मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्लिक हियर। ओके, सो यू कैन ऐड, या फिर मैं ऐसे भी क्लिक कर सकता हूँ डेट एंड ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो। ओके, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आज का ही डेट एंड टाइम मुझे मिलने वाला है। आप 32 सॉरी या फिर 30 फरवरी 2021 ऐसा टाइप करना चाहोगे, और उसके लिए आप यहाँ पे ढूंढोगे तो ऐसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, 30 फरवरी, आई सेड 30 फरवरी, 30 फरवरी। हाँ, द वैलिड डेट क्या है? ओके, आई एम राइटिंग वैलिड डेट। वैलिड डेट इज व्हाट? 30 फरवरी 2021। ओके, सो जो इंटेलिजेंट है वो बोलेगा कि ये वैलिड डेट है, और जो यूजलेस फेला है वो बोलेगा दिस इज इनवैलिड डेट। ओके, सो लेट्स डिसाइड हु इज इंटेलिजेंट एंड हु इज डफ फेला। ओके, सो 30। ओके, अभी मुझे 13 ये ऑटोमेटिक हो गया। इफ आई वांट टू क्रिएट इट मैन्युअली, 30 TH ये मुझे मैन्युअली क्रिएट करना है, तो हम लोग को आता है राइट, इधर ऑप्शन है
This